guys, we will come back over here. Now today we will going to start the new chapter number 7. Is the name of that chapter is mensuration for 10th standard. The subject is maths paper 2. So guys, we will going to start the mensuration. Before starting the mensuration, I want to take some recap, some revision of your previous standard. Guys, in your previous standard, you have been listened about this 6 geometrical diagram. That geometrical diagram is nothing but cuboid, cube, cylinder, as well as a cone, sphere and hemisphere. So guys, I'm going to prepare this some chart for you. In that chart you can see all the formula as well as in a short summary form. I'm going to take the recap for you. Okay. So guys, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपको 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया था. 8th और 9th स्टैंडर्ड में जो स्टडी किया था उस स्टडी में आपको क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर के बारे में 8th में बताया गया था. 9th स्टैंडर्ड में कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में बताया गया था और 10th स्टैंडर्ड में सारे का मिक्सअप, सारे फॉर्मूले का मिक्सअप है. चलिए अब उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं. सो गाइस, this is the chart. I'm going to prepare a chart for you. It will be very easy for you. As well as मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, if you watching this video, so don't forget to press the bell icon as well as like and subscribe करना मत भूलिएगा. If you watching this video, like and subscribe करेंगे तो फ्यूचर में मेरे बनने वाले वीडियोस आप इजीली वॉच कर सकते हो. And please share this video to your friend also. That means they can also see this video and you will got the opportunity for thank you from that side also. तो आपको thank you भी बोलेंगे. So come to the point, cuboid. As you know, what is cuboid? Cuboid is what? आपके घर में पेटी होगा, पेटी होता है, संदूक बोलते हैं उसको. या तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ cuboid is nothing but our compass box. Okay, please look here everybody. Compass box. This is nothing but in our compass box. This is nothing but our length. This is our nothing but our breadth. And this is our height. So I'm going to prepare the diagram of cuboid just like over here. Please look here. Let us consider this is the example of cuboid. Prepare the one rectangle, and once again I am going to prepare the rectangle. Two rectangles are over here. Now I am going to join the edges of the each and every rectangle from the vertices of the points. I am going to join this thing. I am going to join this thing. So you can observe this from the diagram, which is nothing the best example of cuboid. ये आपका ही cuboid हो गया. आप लोग भी देखते रहो, समझ में आ जाएगा. Cuboid. So guys, in this cuboid, this is nothing but our L, which is nothing but length. This is our breadth, which is nothing but B, and this is our height H. Okay guys. Now I'm going to say that in this cuboid, the base of cuboid is nothing but having the one of the geometrical diagram. That diagram is nothing but our rectangle. So guys, आप देख सकते हैं कंपास बॉक्स में ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है और ये आपका हाइट है. इसके बेस में क्या बन रहा है आप देखिए. कौन सा डायग्राम दिख रहा है? LB वाला कौन सा डायग्राम होता है? रेक्टेंगल. ऑब्वियसली, वेरी गुड. ये रेक्टेंगल है. अच्छा, ये रेक्टेंगल है तो ऊपर भी क्या देखो, नीचे रेक्टेंगल है तो ऊपर भी क्या रहेगा? रेक्टेंगल. चलिए कोई बात नहीं, इधर भी रेक्टेंगल है. जब ध्यान से देखो, इधर भी तो रेक्टेंगल है. ब्रेथ और ये हाइट है तो ये भी रेक्टेंगल है, तो इधर भी क्या रेक्टेंगल है. ठीक है. फ्रंट में देखो, ये हाइट और ये लेंथ है, ये रेक्टेंगल, तो इधर भी क्या रेक्टेंगल है. तो देखने की बात क्या है कि इसके अंदर ना टोटल 6 फेजेस है. टोटल कितने फेजेस है? 6 फेजेस. और all 6 phases having the diagram, geometrical diagram, that diagram is nothing but rectangle. ठीक है guys. अच्छा, एक बात बता देना चाहता हूँ. Vertical surface area is nothing but also known as the curved surface area. Okay, vertical surface area is also known as the curved surface area. और curved surface area बोले तो क्या? जैसे इस कंपास बॉक्स को मैंने ऐसे फेंक दिया आपकी तरफ, ये रोटेट होते हुए जा रहा है आपकी तरफ. जब ये रोटेट होते जा रहे हैं तो आपके आईज के सामने से, इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आपकी आंखों के सामने से टोटल कितने फेसेस नजर आ रहे हैं? जस्ट सी 1 2 3 4 once again 1. So कर्व्ड सरफेस एरिया में टोटल 4 फेसेस होते हैं, एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं गाइस. सो कर्व्ड सरफेस एरिया हैविंग द 4 फेसेस. नाउ क्यूबॉइड का फार्मूला का चार्ट जो मैंने बनाया उसको ना सीधा बॉटम से स्टार्ट करता हूं, बेस से स्टार्ट करता हूं. बेस में क्या बनता है आपका? रेक्टेंगल. सो पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ cuboid is nothing but parameter of rectangle. बेस में रेक्टेंगल बनता है. Parameter of rectangle having the formula. What is the formula of parameter of rectangle? As you know, in previous study we have studied about the sum of the formula 2 into L plus 2 into B, in which 2 just common कर लो तो क्या बचेगा? 2L plus B. Parameter of base is having the formula 2L plus B. Got it? As well as area of base of cuboid. तो area of base में क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है. area of rectangle का फॉर्मूला क्या होता है? Length into breadth.
That's why we can write here over here L into B. Got it my point? Now I'm going to start the curved surface area, total and volume. इसके बारे में आपने स्टैंडर्ड में अभ्यास किया था, स्टडी किया था, बट फिर से एक रिवीजन ले लेता हूँ. वॉल्यूम, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. एक टेक्निक दे देना चाहता हूँ आप लोगों को, एक राज की बात है, दिमाग में बैठा लो. वॉल्यूम अगर कभी आपको पाना है, अगर आपको वॉल्यूम कभी पाना है, तो आपको ना एरिया ऑफ बेस ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल डायग्राम ऑफ दिस थिंग में आपको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है. वॉल्यूम पाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? हाइट से मल्टीप्लाई करना है. एरिया ऑफ बेस ऑफ एनी दिस थिंग. ओके, L into B में अगर आपने H का मल्टीप्लाई किया तो आपको वॉल्यूम बन जाएगा. उसी तरह सेम टेक्निक है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पाने का. कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो पैरामीटर ऑफ बेस है उसको भी हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. गॉट इट? सो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. Parameter of base having the formula 2L plus B. So I am going to write over here 2L plus B into H. This is the curved surface area of cuboid. Got it? As well as volume of cuboid is having the same formula. L into B into H is nothing but LBH. LBH. प्यार से हम इसको बुला सकते हैं लाल बहादुर हीरे वाला. लाल बहादुर हीरे वाला, जिस कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, लाल बहादुर हीरे वाला कुछ होता नहीं है, जिस मुझे अपना इंटरेस्ट को लाने के लिए बोल रहा हूँ. L is nothing but length, B is nothing but breadth, and H is nothing but our height. Got it? Now what remain over here? Only total surface area बचा हुआ है. मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से देखो, आपको ये क्या नजर आ रहा है? लेंथ नजर आ रहा है. ये लेंथ है? नहीं, ये लेंथ है और ये क्या आपका ब्रेथ है. तीसरा से अगर देखा जाए तो ये LB है. इसका एरिया क्या बनेगा? LB. चलो मैं एक डायग्राम, इसको मैं ना इसमें ले लेता हूँ. इसका 3D डायमेंशन यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को. ठीक है, 3D मूवीज बहुत देखते रहोगे आप लोग, ठीक है ना. अब थोड़ा इधर भी देख लो, ग्लास लगाने की जरूरत नहीं है, दिख जाएगा आपको. L, ये L है तो ये भी क्या रहेगा? L. ये भी क्या रहेगा? L. ये भी क्या रहेगा? L. दिमाग में बढ़ेगा. ये ब्रेथ है भाई, ये भी क्या दिख रहा है आपको? ब्रेथ. शाबाश. ये ब्रेथ है, ये भी क्या नजर आ रहा है? ब्रेथ. ये भी क्या है? ब्रेथ. यहाँ तक दिमाग में बढ़ गया. सो गाइस ये H है. H के सामने क्या दिख रहेगा? ये H. शाबाश, वेरी गुड. ये क्या दिखेगा? H. अच्छा ये भी H. हाँ, वेरी गुड. सो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, आप लोगों को दिखेगा ये अपना इसका बेस. बेस का एरिया क्या है? LB. ये तुम्हारा LB है. ये LB तो ऊपर भी क्या रहेगा? LB. LB कितना बार LB होगा? 2LB. गॉट इट? उसी तरह ये हाइट और ये लेंथ है, इसके हिसाब से HL. ये HL है. इधर HL है तो क्या इधर HL नहीं होगा क्या? हाँ, इधर भी HL होगा. HL इधर है, इधर भी. आगे भी HL है तो पीछे भी HL है. ओके. अच्छा इधर देखो ना, ये तुम्हारा ब्रेथ है, ये तुम्हारा क्या ब्रेथ, ये तुम्हारा क्या हाइट है. ये BH है तो ये भी क्या होगा? BH. मेरे प्यारे बच्चों मेरी आंखों से देखो और सोच के बताओ, समझ के बताओ, आपके पास कितना LB निकला? 2LB. कितना BH निकला? 2BH. कितना HL निकला? 2HL. एक काम करते हैं, 2 3 बार आया, 2 को ना कुपचे में ले लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं. जब 2 को आपने कॉमन कर लिया तो एक नया फॉर्मूला निकलेगा. पहले फॉर्मूला क्या था? 2LB plus 2BH plus 2HL था. गॉट इट? अब 2 को कोपचे में ले लिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 in bracket LB plus BH plus HL. So I'm going to write this thing over here. Okay, please have a look properly. 2LB plus BH plus HL. ठीक है? Please take a screenshot of this thing. Now we will going to start the cube. Cube is what? Cube क्या रहता है? अरे मेरे भाइयों cube क्या होता है? जब सोच के बताओ. क्यूब इज नथिंग बट, आपने बचपन में लूडो खेला है? लूडो की गोटी याद है आपको? यस, लूडो की गोटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूब. क्यूब इज द बेस्ट एग्जांपल. ज्योमेट्रिकल डायग्राम इज नथिंग बट डाइस. डाइस देख रहे हैं? डाइस में टोटल कितने फेजेस होते हैं? 6 फेजेस होते हैं. ओके, डाइस में टोटल कितने फेजेस होते हैं? 6 फेजेस. 6 फेजेस में आपको याद है 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट. याद आ रहा है ना? हाँ, लूडो सब लोग खेलते हैं, सबको मालूम रहेगा. सो 6 फेजेस होते हैं. सो आई वांट टू से दैट इन द डाइस द लेंथ इज लेंथ. Length is length. But breadth is what? It also length. And height is what? It also length. तो मेरे प्यारे बच्चों जो हाइट होता है वो भी लेंथ होता है, ब्रेथ भी जो होता है वो भी लेंथ होता है. क्लियर हो गया? अब मेरे को सोच के बताओ उसके बेस में क्या बनता है. सुना रहेगा गाना बेबी को बेस पसंद है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बताओ क्यूब के बेस में क्या बनता है? क्या बनता है? स्क्वायर बनता है. क्या बनता है? स्क्वायर. तो क्यूब के बेस में अगर स्क्वायर बनता है तो इस हिसाब से सोच के बताओ parameter of base of cube is what? Parameter of base of cube is what? Parameter of base of square. Parameter of base of cube is what? Parameter of square. Parameter of square is having what formula? क्या formula उसका? हाँ, 4 into length of the sides. Yes, good. 4 into length of the side. That means we can write over here 4L.
4 into L. Got it? As well as area of base. Area of base में देखो पिछले वाले में क्या था, L into B था, इसमें क्या होगा L into B. तो B के प्लेस पे भी क्या L है, H के प्लेस पे भी क्या है L है. That's why it's having the formula L square. Or as you know, area of square having the formula L square. Got it? ये दो चीज दिमाग में बैठ गया. चलिए अभी आपको कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंडिंग का मैंने टेक्निक बताया था. क्या बताया था? मल्टीप्लाई बाय H एंड मल्टीप्लाई बाय H करेंगे तो वॉल्यूम, इसमें मल्टीप्लाई बाय H करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया. सेम चीज 4L into L, 4L into L, क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या L है, it will look like a 4L square. Got it? As well as L square में परत हाइट का मल्टीप्लाई करना है क्या आपने को, फिर से हाइट का मल्टीप्लाई करना है, मतलब L square into height is nothing but L. L square into L, it will look like L cube. Got it? यहाँ तक समझ में आ गया. एक और दूसरा टेक्निक है तुमको समझाने का. जैसे मान लो कि ये एक डाइस है नहीं, कल्पना करो कि ये एक डाइस है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, डाइस है, लूडो की गोटी है. इट लुक लाइक जस्ट लाइक अ क्यूब. अब इस क्यूब में इधर L स्क्वायर है, इधर L स्क्वायर है, इधर L स्क्वायर है, इधर स्क्वायर. टोटल अपना कर्व सरफेस एरिया में देखो कितने L स्क्वायर निकल नजर आएंगे आपको, 4L स्क्वायर इधर दिख रहा है. लेकिन जब टोटल की बात आती है तो 4 के साथ आजू और बाजू का दोनों ऐड होता है, तो टोटल कितने उस पे फेसेस हो जाएंगे, 6 फेसेस. सो 4L स्क्वायर इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, 6L स्क्वायर. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. ओके गाइस, कम टू द सिलेंडर. सिलेंडर इज व्हाट? आप लोगों ने सिलेंडर के बारे में सुना रहेगा. हाँ, मुझे जानता हूँ आप लोग के दिमाग में तुरंत गैस का सिलेंडर आ गया रहेगा. सही बोल रहे हो. गैस का सिलेंडर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिलेंडर. सो गैस का सिलेंडर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिलेंडर. थर्ड डायग्राम ऑफ आवर मेंसुरेशन. तो आप जरा देख रहे हैं गैस के सिलेंडर के बॉटम में क्या है. हाँ, उसके बेस में, हाँ बेबी को बेस पसंद है, पता है, मालूम है. उसके सिलेंडर के बेस में क्या नजर आएगा, बोलो, सोच के बताओ. सर्कल नजर आता है. अगर नीचे सर्कल है तो ऊपर भी उसके टकले पे, उसके टॉप में देखो क्या रहेगा, ऑब्वियसली सर्कल है. तो देखा जाए तो उसका एग्जांपल का मैंने 3D डायमेंशन करके डायग्राम ही आपके सामने क्रिएट कर दिया. ये आपका सर्कल है, ऊपर भी क्या है, सर्कल है. 2 सर्कल हो गया. तो सिलेंडर के ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल, और ये उसका पूरा डायग्राम हो गया. सिलेंडर इज नथिंग बट बेलन. मम्मी ने बेलन से रोटी बनाया. हाँ, मैं समझ रहा हूँ. बेलन की का मतलब खाने की बात नहीं बोला ना, रोटी बनाने की बात बोला. तो बेलन आपने देखा रहेगा. हाँ, रोटी बनाते समय जो होता है उसी को सिलेंडर बोला जाता है. समझ में आ गया. सो गाइस, अब आपको सिलेंडर के बारे में बताता हूँ. सिलेंडर के अंदर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ बेस के बारे में स्टडी करना है. तो सबसे पहले एज यू नो इधर से स्टार्ट किए थे, तो उधर भी इधर से स्टार्ट करेंगे. जरा मुझे सोच के बताओ, पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है. पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है. अरे बेस पे पहले क्या बनता है वो पहले सोचो. सर्कल बनता है. गुड. तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है. अरे तुम पैरामीटर ऑफ सर्कल मैंने पूछ दिया, लेकिन आप लोगों ने सोचा रहेगा पैरामीटर ऑफ सर्कल तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है. हाँ, करेक्ट सोच रहे हो. पैरामीटर ऑफ सर्कल का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप एक राज की बात बता देना चाहता हूँ. तो geometrical diagram which are having the sides, which are having the edges, the geometrical diagram which are having the side, which are having the edges, having the one rotation. When we taking the one rotation, one revolution of that diagram, जैसे रेक्टेंगल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी स्क्वायर का, हमने वन रिवोल्यूशन, वन रोटेशन किया, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक चक्कर एक फेरा मारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पैरामीटर. ट्रायंगल का भी अगर एक रोटेशन मारा तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर. लेकिन सर्कल में साइड्स नहीं होता, और सर्कल का जब एक रोटेशन मारते हैं तो उसको सर्कमफरेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस. दैट मींस पैरामीटर ऑफ सर्कल इज आल्सो नोन एज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल बहुत बचपन से पढ़ा रहेगा. सी याद आ रहा है, सी हैविंग द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr. सी इक्वल्स टू 2πr. याद आ रहा है आप लोगों को. एज वेल एज सी का फॉर्मूला एक और पढ़ा था, πd. ओके, हम लोगों ने अपने लास्ट स्टैंडर्ड में अपने बच्चों को बताया था. सी इक्वल्स टू πd, सी इक्वल्स टू 2πr. कुछ बच्चों को तो मैंने टेक्निक भी दिया था. सी को याद करने का फॉर्मूला, सी को याद करने का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, किसी को याद है क्या, नहीं याद है, मैं बता रहा हूँ. याद करो, टपोरी दिया था. टपोरी, टपोरी, ट से 2, ओ से पाई, डी से आर, 2πr. समझ में आया क्या. एज वेल एज सी का याद करने का फॉर्मूला दिया था. पांडु, पांडु याद है, पांडु. हाँ, पांडु, पांडु इज नथिंग बट पावर पाई डी, डू टू मतलब डी, πd. तो ऐसे मैंने 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट में आप लोगों को टेक्निक दिया था. सी का याद करने के लिए फॉर्मूला दिया. टपोरी याद करो. सी का फॉर्मूला क्या होता है, टपोरी. टपोरी इज नथिंग बट 2πr. सी इज आल्सो नोन एज अ πd, पांडु. ऐसा मतलब मस्ती में आपको मैं बताया था.
तो एक टेक्निक दिया जाता है जिससे आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाता है. तो C is having the formula 2 pi r and pi d. So guys, what is the difference between this 2 pi r and pi d? No any difference. D is nothing but diameter का फॉर्मूला क्या होता है 2 into radius. That means 2r. तो 2 pi r. Both formula are same. चलिए अब आपको एक चीज क्लियर कर दिया आप लोग को. As well as come to the point. So parameter of base of cylinder is nothing but circumference of cylinder. It will also known as the formula 2 pi r. Circumference of cylinder क्या होता है? सर्कल क्या होता है? 2 pi r हो जाएगा. वेरी गुड. उसी तरह एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर चाहिए. एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. सर्कमफरेंस 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. दिमाग में बैठेगा चिल्ड्रन से. एज यू नो अपना स्टाइल मल्टीप्लाई बाय एच. इसमें एच करेगा तो क्या निकलेगा? ये लाइन. इसमें एच करेगा तो ये लाइन. दिमाग में बैठा लो. एकदम फट्टे दिमाग में बैठा लो. 2 पाई आर में एच का मल्टीप्लाई करेगा 2 पाई आर एच. जैसे इसमें एच किया इसमें भी एच किया तो इसमें भी 2 पाई आर एच किया. ठीक है. अब पाई आर स्क्वायर है. पाई आर स्क्वायर है ऐसे बोला ना एच करने का. तो इसमें क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच. दिमाग बैठ गया. मेरे पहले बच्चों डायग्राम पे आ जाओ. डायग्राम में देखेंगे तो ये जो सर्कल है ऊपर सर्कल है नीचे जो सर्कल है इसके सर्कल में सेंटर है. ऊपर सेंटर और नीचे सेंटर है. इस सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करेंगे ना तो उस सिलेंडर की ना ओरिजिनल हाइट निकलेगी. किसी भी सिलेंडर की मेन हाइट होती है ना सेंटर टू सेंटर होती है. हम लोगों को ज्यादातर क्या सिखाया जाता है कि ये वाला हाइट है. हाँ ये वाला हाइट है लेकिन अगर अंदर से देखा जाए ना तो उसकी मेन हाइट सेंटर टू सेंटर की कनेक्टिविटी को बोलेंगे आपको. ओके ये उसका मेन हाइट है एच. तो मेन हाइट इज नथिंग बट आल्सो नोन एज द परपेंडिकुलर हाइट जो कि आपको कोन वाले डायग्राम के टाइम पे समझ जाना पड़ेगा मेरे को. अभी इसे दिमाग में डालो. दिस इज नथिंग बट आवर एच. दिस इज आवर नथिंग बट आवर एच. दिस इज आवर नथिंग बट आवर रेडियस. ये रेडियस है ये भी रेडियस है. दिमाग में बैठ गया चिल्ड्रन से. तो मेरे प्यारे बच्चों आपके 2 पाई आर में h का मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आर एच निकल गया. आपके पाई आर स्क्वायर में h निकला तो पाई आर स्क्वायर एच निकल गया. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया. ये दो टेक्निक जो मैंने बताया मल्टीप्लाई बाय एच करने से आपका ये 3 लाइन का फॉर्मूला क्लियर हो जाता है. हाँ मैं देख रहा हूँ टोटल बाकी है बता तो डोंट वरी. यहाँ तक दिमाग में बैठ गया चिल्ड्रन से. सो गाइस अब ऐसा x से मल्टीप्लाई करने वाला 1 2 3 लाइन में फिक्स है. लेकिन एक राज की बात बताऊँ आगे नहीं ऐसा होने वाला है. तो टोटल 6 में से ये 3 में आगे के 3 में मल्टीप्लाई बाय एच करने वाला जुगाड़ नहीं है. सो पहले से ही सावधान इंडिया हो जाओगे. ओके चलिए तो यहाँ तक समझ में 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच. अभी तुम मेरे से कोई पूछे सर 2 पाई आर एच तो समझ में आ गया कोई और टेक्निक से समझा सकते हो क्या? तो मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ. याद करो लोहे का ड्रम याद है. लोहे का ड्रम अपना लोहे का ड्रम काम का नहीं रहता. जाके भंगार वाले को भेज देते. भंगार वाला क्या करता है एक बड़ा कैंची लेता है. उस कैंची से ना इसको काटता है. काट देता है. काटने के बाद उसको फैला देता है. चलिए ये सिलेंडर है पानी का ड्रम अपने लोहे का. ठीक है उसको काट दिया. ठीक है. सो गाइस लोहे के ड्रम को अगर कैंची से काट दिया तो काटने के बाद उसको चपटा करके फैला देता है. वो भंगार वाला फैला देता है. भंगार वाला फैला देता है. उस पर सब लोग चलते रहते. हमको कभी नहीं मालूम पड़ता कि हमारे पैरों के नीचे क्या है कोई टाकी पड़ा था. किसी को मालूम नहीं रहता. उसका टोपन काट देता है उसका बॉटम काट देता है उसका टॉप काट देता है उसका बॉटम काट देता है और उसको चपटा करके भंगार वाला जमीन पे डाल देता है. सर बहुत सारे ड्रम को एक के ऊपर करके जमीन पे रख देता. पब्लिक आती है जाती है किसी को मालूम नहीं रहता है वो क्या है एक ड्रम था. अब उसका डायग्राम अगर आप नीचे मुंडे डाल के देखेगा तो क्या दिखेगा? रेक्टेंगल जैसा दिखेगा. बरोबर. मेरे प्यारे बच्चों जो सोच के बताओ ये जो रेक्टेंगल है पहले ये रेक्टेंगल ड्रम था. बरोबर. रेक्टेंगल पहले ड्रम था. तो उसका जो अभी समय लेंथ है वो L पहले क्या था? ये पूरा था. बोला तो ऐसा हुआ ना. ये पूरा था. ये पूरा इज नथिंग बट सर्कमफरेंस. L के प्लेस पे क्या आएगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. ये पूरा खोल के ऐसा फैला दिया तो L हो गया ना. लेकिन इसके पहले सर्कल था तो ये क्या होगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर है. उसी तरह जो आज चपटा होने के बाद ब्रिथ का रोल प्ले कर रहा है रेक्टेंगल का वो पहले क्या था? हाइट था. ठीक है दिमाग बैठ गया. अब मुझे सोच के बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ L इनटू B. सिमिलरली आई वांट टू से दैट L इनटू B करेगा तो 2 पाई R इनटू H होगा. अंडरस्टैंड? 2 पाई R H कैसे बना? 2 पाई R H कैसे बना इसको समझाने के मैंने दो मेथड बताया. मल्टीप्लाई बाय H कर लो या तो मैंने ये जो समझाया. ठीक है. सो चलो आगे चलते हैं.
चलो अब सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, दिमाग बैठ गया रहेगा। अब बारी है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। टोटल सरफेस एरिया में ध्यान दो, टोटल सरफेस जो एरिया जो होता है वो ये चीज होता है कि कर्ड सरफेस एरिया में जो अपन आजू और बाजू का ऐड करते हैं उसको ही हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं सिलेंडर के लिए। जैसे मान लीजिए सिलेंडर है नहीं, मान लीजिए सिलेंडर टाकी है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये सर्कल के जैसा सिलेंडर है। अब सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुमने अभी स्टडी किया 2 पाई आर एच। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। इसके आजू और बाजू में टॉप और बॉटम में क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, गुड। तो 2 पाई आर एच कर्ड सरफेस एरिया हो गया। आज वाले टोटल पाने के लिए आपको इस 2 पाई आर एच में ये सर्कल और ये सर्कल का एरिया भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान दो, 2 पाई आर एच में आपको 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। बोले सर 2 कहां से आ गया, अरे बाबा नीचे भी सर्कल है तो ऊपर भी सर्कल है ना, नीचे का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर का भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच में आपको 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। क्यों, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का मतलब आपको कर्ड सरफेस एरिया के अंदर उसके आजू और बाजू में जो सर्कल है उसके एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दिमाग में बैठ गया अच्छे ढंग से, व्हाट इज माय पॉइंट। सो 2 पाई आर एच में आपने 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड किया। या तो मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं, पहले ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये दोनों सर्कल का इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का भी एरिया सेम होगा पाई आर स्क्वायर, दैट मींस ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ओके। और इसके बाद कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या 2 पाई आर एच, तो इसको मैंने 2 पाई आर एच लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों में से कोपचे में क्या लिया जा सकता है, कोने में क्या लिया जा सकता है, ध्यान से देखो, 2 लिया जा सकता है, पाई भी कॉमन किया जा सकता है। अरे भाई मेरी आंखों से देखो, आर स्क्वायर है, दिख रहा है क्या, आर स्क्वायर इज नथिंग बट आर इंटू आर। हाँ तो इधर भी एक आर है, मेरी आंखों से जरा ध्यान से देखो, 2 पाई आर, हाँ 2 पाई आर आपने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर का एक आर बचेगा और इधर से क्या बचेगा, एच बचेगा, बीच में कौन साइन प्लस का। 2 पाई आर प्लस एच इज द बेस्ट फॉर्मूला, इज द मेन फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। 2 पाई आर प्लस एच इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये फॉर्मूला आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा था, 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा था, लेकिन अब 10th स्टैंडर्ड में जाके आपको मैं क्लियर कट दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ कि इसका फॉर्मूले का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये फॉर्मूला बॉर्न हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूले का कैसे इजाद हुआ अगर दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आप इजीली सम्स को कर सकते हो। 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा हॉट्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हॉट्स का फुल फॉर्म हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ा चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लियर होएगा तब आपको ये चीज इजीली क्लियर समझ में आएगा। ओके गाइस, सो प्लीज इसको अच्छे ढंग से समझ के ले लो। नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज व्हाट, कोन। कोन क्या होता है, कोन आपने सुना रहेगा कोन के बारे में, हाँ मैं जान रहा हूँ, कोन सुनते कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया रहेगा। आइसक्रीम का कोन, हाँ हाँ मैं सुना हूँ, कॉर्नेटो का, अमूल का आता रहेगा मार्केट में, हाँ। और कुछ बच्चे तो खुश हो रहेगा, कोन बोला तो जोकर की टोपी, हाँ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोन इज नथिंग बट आवर जोकर की टोपी। आइसक्रीम का कोन, उस एग्जांपल को हम क्या बोलते हैं, कोन। एक सेलो ग्रिपर का पेन में ले लेता हूं अपने एक स्टूडेंट से। सेलो ग्रिपर का पेन आप लोगों ने देखा रहेगा, देखिए मेरे पास सेलो ग्रिपर का पेन है, मेरे स्टूडेंट ने मेरे हाथ में दिया। सो सेलो ग्रिपर के पेन को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसके स्टार्टिंग में दिख रहा है इतना पोर्शन अपना क्या है, कोन का है, मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है, दिमाग में बैठ गया अच्छे ढंग से। और नीचे का बॉडी क्या है, सिलेंडर का है, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। कम टू द पॉइंट, जो कोन जो होता है ना पूरे सिलेंडर का ना 1/3 पोर्शन होता है। कितना पोर्शन होता है, 1/3, मतलब 100 रुपया रहेगा उसका 1/3 कितना होता है, 33.3333 है, बराबर याद रहे, 1/3 पोर्शन होता है। तो उसको कैसे मैं अपना बनाता हूँ, आपको आज की बात बताया याद है, इस सेंटर से इस सेंटर को ज्वाइन करेगा तो क्या मिलता है अपने को, ओरिजिनल हाइट मिलता है, बराबर। ये ओरिजिनल हाइट होता है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, लेकिन मेरी आंखों से देखो, मेरी बात मानो, ये मेन हाइट है, दिमाग में बैठा के चलो, जिसको अपन दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या बना, सर्कल, तो सर्कल के लिए क्या बन गया तुम्हारा, रेडियस, दिख रहा है बरोबर, नजर आ रहा है उसको, बरोबर, रेडियस रेडियस। अब ये रेडियस है, अब मैं 1/3 बोले तो इसको देखो, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया,
ये जो डायग्राम बाहर निकल के आया तुम्हारे आंखों के सामने, ये तुम्हारा कोण है। इसको मैं थोड़ा काट के साइड में निकाल लेता हूँ। ये होगा तुम्हारा कोण का डायग्राम। समझ में आ गया स्टूडेंट से? तो ये कोण क्या होता है? सिलेंडर में से ही कोण का जन्म होता है। सिलेंडर का 1/3 पार्ट जो होता है कोण होता है। समझ में आ गया? शंकु जो होता है बेलन का 1/3 हिस्सा होता है। ठीक है, ये शंकु है, ये बेलन है। ठीक है, तो कोण जो होता है 1/3 पार्ट होता है अपने इसका सिलेंडर का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था, मेन हाइट बोले तो सेंटर टू सेंटर कनेक्टिविटी होता है, जिसका अभी आज इस्तेमाल है। दिस इज नथिंग बट एच परपेंडिकुलर हाइट, एज वेल एज ये बॉटम में जो सर्कल बनता है, ये तुम्हारा उसका रेडियस हो गया। चलो ध्यान से देखो, ये H है और ये R है, और ये पूरा डिजाइन किस हिसाब से सेट किया। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। यस, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। तो इस हिसाब से एच आर के हिसाब से इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मैं राइट एंगल का इधर सिंबल बना दूं, राइट एंगल का सिंबल बनाने की वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये तुम्हारा बेस और ये तुम्हारा हाइट है। तो ये तुम्हारा कौन सा रोल प्ले करेगा? हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला मतलब पाइथागोरस का फॉर्मूला थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसका तो कुछ तो है गड़बड़। जरा ध्यान से देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सिलेंडर को रोटेट करने के लिए अपने कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। कर्व सरफेस एरिया, ये बोले सिलेंडर है, यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं तो अपने इसका इस्तेमाल कर रहा है गोल गोल घूमने के लिए। एज वेल एज रोटेट होने के लिए अपनी इस हाइट का इस्तेमाल करता है, ये वाला हाइट का इस्तेमाल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। सो मेरे प्यारे बच्चों, बाय यूजिंग हाइट दिस सिलेंडर इज रोटेटिंग। ओके, बट अगर मैं इसमें से ये जो टॉप में मेरा क्या है कोण है, इस कोण को मैं ऐसा रिमूव करूं, ध्यान दो, मेरी आंखों से देखो ध्यान से, इस कोण को मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलो ये कोण रिमूव किया। अब पहले ये सिलेंडर को मैं अगर धक्का मारूंगा तो ये घूमते घूमते आप तक पहुंचेगा। यहाँ से धक्का मारा तो आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचेगा? ऐसे गोल गोल घूमते पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे इस कोण को मैंने अपने इधर रखा और इसको मैंने धक्का मारा तो देखो ये आपके पास पहुंचता है क्या? मैं इसको धक्का मारूंगा तो ये क्या हो रहा है? गोल घूम के ऐसे रोटेट हो जा रहा है। गोल घूम के क्या हो जा रहा है? रोटेट हो जा रहा है। अगर इसको मैं धक्का मारूंगा तो ये कैसा हो रहा है? ऐसा गोल घूम के ऐसा घूम के आ जाएगा। तो मतलब ये अपने रोटेशन के लिए अपने ना एच का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एच बोले तो परपेंडिकुलर हाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फिर किसका इस्तेमाल कर रहा है? अपनी इस वाकड़ी ऊंची मराठी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट का इस्तेमाल कर रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? ये कोण है जो रोटेशन करने के लिए अपने एच परपेंडिकुलर हाइट, जो ओरिजिनल हाइट का यूज नहीं कर रहा है, वो रोटेशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे तो जाता नहीं, ऐसे गोल घूम के एक ही जगह रह जाता है, तो उसके लिए वो अपने स्लांट हाइट का इस्तेमाल करता है। वाकड़ी ऊंची बोलते हैं मराठी में, हिंदी में तिरछी ऊंचाई, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट बोलो या लेटरल हाइट बोलो, ठीक है? स्लांट हाइट बोलो या लेटरल हाइट। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो डिनोटेड बाय द एल। इसको किससे डिनोट करते हैं? एल। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको एल क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्लांट हाइट इज नोन एज एल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से एक फॉर्मूला बनेगा एल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो ये इस लिस्ट में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है स्पेशली फॉर कोण, सबके लिए नहीं है, बस कोण के लिए। एल स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एल होगा, बट इसका क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको अच्छे ढंग से नोट कर लो। मैं लिस्ट में इधर किधर एडजस्ट कर लूंगा, इधर नीचे एडजस्ट कर लूंगा। एल इज नथिंग बट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्पेशली फॉर कोण है, बाकी सब में नहीं है। दिमाग बैठ गया अच्छे से? चलो आगे स्टार्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाते फॉर्मूले पे आ जाते हैं। कोण के एरिया ऑफ बेस ऑफ कोण चाहिए। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोण, अभी कोण दिख रहा है तुमको, अलग से काट के मैंने निकाल के रख दिया। कोण जो होता है सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। 1/3 पार्ट होने की वजह से उसके अंदर कितना सर्कल होता है? ओनली 1 सर्कल होता है उसकी बेस में। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों को ये तंबू भी दिख रहा होगा। हाँ, टेंट के जैसा दिख रहा है। टेंट है, हाँ, ये तंबू है, ये उसका बम्बू है। तंबू का बम्बू है, इस बम्बू पे पूरा तंबू खड़ा हुआ है, बरोबर ना? टेंट ऑन लगाते हैं हम लोग, कभी एनसीसी का कैंप जाता रहेगा तो आप लोग को पता रहेगा, टेंट ऑन लगाते रहेंगे सब लोग। हाँ, बरोबर। इस बम्बू पे ये पूरा तंबू खड़ा है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेंट इज नथिंग बट आवर कोण। हाँ, चलिए गाइस, सो इसके बेस में एक सर्कल क्रिएट होता है। उस सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो ये आपका पाई आर स्क्वायर। आप बोले चलो एक याद किया, ये भी उधर कट कॉपी पेस्ट मारा, सेम वही करना ही है।
इधर पाई आर स्क्वायर था, इधर भी पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा, उसके पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ कोन बोले तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सेम फॉर्मूला 2 पाई आर, दिमाग बैठ गया, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, बरोबर। अब तुम बोले वाह बल्ले बल्ले, अभी खुशी की बात है, सर क्या करने वाले, इंटू एच करने वाले। नहीं, मैंने पहले ही बोला था इंटू एच का जुगाड़, ये पूरे 6 में से ओनली 3 तक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब आगे एच मल्टीप्लाई एच वाला जुगाड़ नहीं है, ध्यान दो। 2 पाई आर इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब पैरामीटर बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन हैविंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कोन। कोन अपना गोल गोल घूमने के लिए, अपना रोटेशन करने के लिए, कोन तो आगे जाता नहीं, ऐसे घूम के आ जाता है, अपनी एक इस तरह रोटेट धक्का मार के दिखाया था, ऐसे घूम के आ गया था। आप भी सेलो पेपर का पेन का टोपन निकाल के ऐसे ढकेलेगा, ऐसे गोल घूम के दिखेगा, आगे ऐसा नहीं रोटेट होगा। जब पेन को धक्का मारेगा तो गप 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 करके आपके पास पहुंच जाएगा, दिमाग में बैठ गया। सो गाइस, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर एल, क्योंकि ये रोटेशन करने के लिए अपने स्लांट हाइट बोले तो वाकड़ी ऊंची, तिरछी ऊंचाई का इस्तेमाल करता है, तो इसके एल का इस्तेमाल करता है, दैट्स व्हाई पाई आर एल इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दिमाग में बैठ गया, कंफ्यूज मत होना। इस पूरे लिस्ट में एल का मतलब लेंथ भी होता है, इस पूरे लिस्ट में एल का मतलब लेंथ ऑफ द साइड्स होता है, लेंथ ऑफ साइड्स होता है, और यहाँ पे एल का मतलब कोन के लिए स्लांट हाइट है। हाँ, अलग अलग डायग्राम अलग अलग है, बट ये एल का मतलब यहाँ पे स्लांट हाइट है, ओके। पाई आर एल समझ में आ गया, चलो ये समझ में आ गया। ये पहले कर देता हूँ, फिर टोटल बाद में बताता हूँ। ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम अपने को निकालना है कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का सोचो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा। अरे भाई, मैंने कुछ समय पहले बताया था, याद है क्या बताया था, 1/3 पार्ट होता है कोन अपने सिलेंडर का, तो सिलेंडर का एरिया क्या है, सॉरी वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया, ये पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये भी क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने को टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का, फिर उसके अंदर बॉटम का मतलब एरिया ऑफ बेस ऐड करने का। तो चलो सोच के बताओ, एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल है, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल इज हैविंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, नजर आ रहा है, बरोबर। पाई आर स्क्वायर में आपको उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका तो क्या था, पाई आर एल, बरोबर। मेरी आंखों से देखो, क्या क्वेश्चन लिया जा सकता है, क्या कॉमन किया जा सकता है, पाई है, पाई कॉमन कर लेंगे, ये आर स्क्वायर है भाई, आर इंटू आर होता है, तो आपका पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर प्लस एल बच जाएगा, गॉट इट। सो हैविंग द फॉर्मूला पाई आर प्लस एल, दिमाग बैठ गया। तो कोन का भी लाइन क्लियर हो गया। अभी आपका लास्ट है, सेकंड लास्ट है स्फीयर। प्लीज इसका अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो गाइस, स्फीयर के बारे में जानना चाहेंगे। स्फीयर का सुना है कई वर्ड, हाँ स्पोर्ट्स में हम लोगों ने गोला फेंक सुना है, गोला फेंक, स्फीयर में हम लोग फेंकते हैं, देखते हैं किसका कितना दूर तक जाता है। यस, स्फीयर का बेस्ट एग्जांपल है हम लोग का बॉल, हम लोग बॉल खेलते हैं, रबड़ी बॉल से क्रिकेट मैच खेलते हैं। यस, तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट आवर क्रिकेट मैच का बॉल, या कोई गोला फेंकते हैं, स्फीयर को हम भाषा में गोला भी कहते हैं। अच्छा, आपको एक बात बता दो, स्फीयर का जो होता है उसका ना बॉटम कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि बॉल का कोई फिक्स बॉटम नहीं, कभी इधर कभी उधर लुढ़कते रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने आपके लिए एक नया सिस्टम लाया है। क्या सिस्टम, पैरामीटर ऑफ बेस और एरिया ऑफ बेस ऑफ स्फीयर का कोई फॉर्मूला नहीं, तो वहाँ पे डैश डैश नो एनी फॉर्मूला, दिमाग में डालो। पैरामीटर ऑफ स्फीयर, पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ स्फीयर, नो एनी फॉर्मूला। एरिया ऑफ बेस ऑफ स्फीयर, नो एनी फॉर्मूला, डैश डैश, दिमाग में बैठा लो। हम लोग कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकते हैं पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ स्फीयर क्या होता है, आप सोचने लगे पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, कुछ तो ऐसे बोलने लगे, चक्कर में पड़ जाएगा। सो कंफ्यूज मत होना, पैरामीटर बेस ऑफ स्फीयर का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जो बॉल होता है उसका कोई बॉटम फिक्स नहीं होता, उसका कोई बेस नहीं होता। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। जब ये दोनों नहीं है तो ये तीनों है, लेकिन ये तीनों है। अभी टोटल सरफेस एरिया या तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, हैविंग द फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। आप बोलिए सर 4 पाई आर स्क्वायर कैसे, जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो अपने चारों दिशाओं का इस्तेमाल करते हुए तो वो आपके सामने जाता है, सर्कल जैसा क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई इज हैविंग द फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर।